حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسولك الخليل جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم وقاسم حقوقهم ومن ذي فضائلهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال تعالى وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم اللهم صل على محمد وآل محمد آخرات التماس حکمت رسول الحمد للہ رسول ایک صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد یقیناً اس علیہ السلام کی مرضی سے بچے کے بہانے سے لیکن مناسبات بہت زیادہ ہیں۔ ایک مناسبت یہ کہ اصحال ثواب، دوسری مناسبت جن ایام سے آپ گزر رہے ہیں یہ ایام ہمارے آخری امام سے متعلق ولادت سے قریبی مجلس ہے، لہذا دوسری مناسبت امام کے لیے ہے، اور تیسری مناسبت یہ کہ انشاءاللہ آپ 4 روز میں استقبال ماہ مبارک رمضان میں قریب ہیں، اور جیسا کہ عرض کیا تھا کہ انسان جس چیز کو جتنا چاہتا ہے، جتنا جس سے لگاؤ ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ للک کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بہت ہی توجہ کے ساتھ اس چیز کے استقبال میں رہتا ہے۔ مثال بھی دیا تھا، دوسری مثال اس سلسلے میں پہلی مثال یہ دیا تھا کہ جب مہمان آتا ہے تو مہمان جتنا قریبی ہوتا ہے اور جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اس سے، اتنا ہی اچھا استقبال ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کا انتظار ہوتا ہے، اور بہت ہی عنایت سے، محبت سے اس کے لیے پل پل دیکھتے ہیں کہ اب آنے والا ہے، اب اتنا ٹائم بچا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ انسان جو محبت کرتا ہے بہت زیادہ، یا اپنے بچے کے لیے، یا اپنے پوتے کے لیے، یا اپنے نواسے کے لیے، چونکہ محبت بہت زیادہ رہتی ہے بچے کے لیے یا اپنے عزیز و اقارب کے ہاں جو ولادت ہوتی ہے، تو جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ منتظر ہوتا ہے، اور باقاعدہ طور پر نظر رکھتا ہے کہ اب ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ 15 دن رہ گیا، 10 دن رہ گیا، 12 دن رہ گیا، تو جیسے جیسے ولادت قریب ہوتی ہے گویا اس کی چاہت بڑھتی جاتی ہے، اس کی محبت بڑھتی جاتی ہے، لہذا وہ ایک ایک پل میں منتظر رہتا ہے کہ اب ان قریب مہمان آنے والا ہے، ان قریب ولادت ہونے والی ہے، تو جتنی زیادہ چاہت ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ وہ ایک ایک لمحے کو گنتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو مہمان آنے والا ہے، اللہ کا مہینہ آنے والا ہے، شہر اللہ آنے والا ہے، جس کی جتنی محبت ہوتی ہے اتنا ہی اچھا استقبال کرتا ہے۔ صلوات اور ہمارے ائمہ معصومین نے استقبال کر کے بتایا ہے، باقاعدہ ظاہر کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی انسان ہے جو چلتا ہوا چلا رہا ہے۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چاند نکل آیا ہے، یہی استقبال ہے، دعا پڑھ لیا، دیکھ لیا، لیکن ائمہ معصومین کے لیے باقاعدہ گھر سے باہر جاتے تھے اور بہت ہی زیادہ خوش ہو کر کے کہ اللہ تعالیٰ کا برکتی مہینہ آ رہا ہے، ہمارے لیے توبہ لے کر کے آ رہا ہے، ہمارے لیے استغفار لے کر کے آ رہا ہے، ہمارے لیے مغفرت لے کر کے آ رہا ہے، ہمارے لیے بہت زیادہ
رزق فراوان لے، چونکہ رزق کا مطلب صرف نہیں ہے کہ انسان جو ہے پیسہ زیادہ آئے تبھی سمجھے کہ رزق زیادہ ہے، نہیں، رزق ہر طرح کا ہوتا ہے، عمر میں اضافہ ہو جائے یہ بھی رزق ہے، اقبال میں اضافہ ہو جائے یہ بھی رزق ہے، عزت میں اضافہ ہو جائے یہ بھی رزق ہے۔ سلامت بھیجا کیونکہ رزق کہتے ہیں انسان کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ رزق کا مطلب یہ ہے کہ مال ملے تو رزق ہے، روزی ملے تو رزق ہے۔ امام سے پوچھنے والے نے پوچھ لیا، طالب علم تھا، کہ مولا یہ بتائیے کہ ہم طالب علموں کے لیے مال دنیا جو رزق کہا گیا ہے بہت کم کیوں ہے کہ ہم لوگ پڑھتے، چونکہ ماشاءاللہ اب تو حالات اچھے ہو رہے ہیں، پہلے بہت مشکل سے علماء کرام پڑھ پاتے تھے، بڑے بڑے مجتہدین حیات نظام کے حالات دیکھیں تو کیسے کیسے انہوں نے پڑھائی کیا، کیسے کیسے ترقی کیا ہے، لہذا ایک طالب علم نے جا کے چھٹے امام سے سوال کر لیا حالات کو دیکھ کر کے، چونکہ اس زمانے میں دباؤ بہت زیادہ تھے، بہت مسلسل بادشاہوں نے دبایا ہے، اور کوئی چیز بھی مولانا یا اس زمانے کو علماء کرام یا جو امام کے قریبی صحابہ تھے ان تک پہنچنے ہی نہیں دیتے۔ باقاعدہ ایسا دور آ گیا تھا کہ امام کے سامنے جا کر کے رو کر کے بیان کیا کہ مولا یقیناً آپ کو تو زندان میں ڈال دیا گیا ہے، ہمارے گھروں میں ایسا دور آ گیا ہے کہ ایک لباس پاک ہے، اسی میں انتظار ہوتا ہے کہ گھر میں اگر 5 عورتیں ہیں تو پہلے ایک عورت نماز پڑھ لیتی ہے، پھر دوسری عورت اسی لباس کو پہنتی ہے، یعنی اور جو ہم پہنتے اتنا پھٹا پرانا ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ سلوات بھیجا یہ بالخصوص 10ویں امام کے دور میں، 11ویں امام کے دور میں ایسے دباؤ میں آ گئے تھے، اتنا زیادہ پریشانی میں آ گئے تھے، اتنا زیادہ حیرانی میں آ گئے تھے، لہذا امام نے گویا ان کو بہت زیادہ سنبھالا اور بہت زیادہ بچایا کہ نہیں انشاءاللہ یہ گھڑی تبدیل ہونے والی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر محبت ہے، اگر ان کی چاہت ہے تو اللہ تعالیٰ نے صرف مال میں رزق نہیں رکھا ہے، ان کی محبت بھی تو رزق ہے، ان کی چاہت بھی تو رزق ہے، ان سے لگاؤ بھی تو رزق ہے، ان سے تعلق بھی تو رزق ہے، ان کی معرفت بھی رزق ہے، ان کے قربت میں جانا بھی رزق ہے۔ لہذا جب طالب علم نے پوچھ لیا کہ یہ بتائیے کہ ہمارے حق میں اتنا کم کیوں ہے، اور دنیا میں دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ نہ جانے کیا کیا بنتے چلے جا رہے ہیں، امام مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ صرف تم مال کو اور پیسے کو رزق دیکھ رہا ہے، یہ جو تجھ کو علم مل رہا ہے کیا رزق نہیں ہے؟ کہا مولا یقیناً یہ بھی رزق ہے، کہا کہ یہی رزق تو اصلی رزق ہے۔ لہذا علماء کرام ہمارے مجتہدین نظام کے لیے ملتا ہے کہ جب کوئی مشکل مرحلے کو حل کر لیتے تھے اتنا زیادہ خوش ہوتے تھے کہ ٹہل کے کہتے تھے این الملوک، وہ بادشاہ کہاں ہیں جو کہتے ہیں لذت ہے؟ لذت تو قرآن میں رکھا ہے، لذت تو حدیث میں رکھا ہے، لذت تو روایت میں رکھا ہے، لذت تو ان کی محبت میں رکھا ہے۔ سلوات بھیجا ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ انشاءاللہ اس میں انسان آمادہ ہوتا ہے، اور وہ بھی روایت پیش کیا تھا کہ اس میں اگر ہماری بخشش نہیں ہوئی تو پھر 11 مہینے تک ناممکن ہے۔ یہی ایسا مہینہ ہے کہ امام سے پوچھا گیا کہ مولا اگر یہ مہینے میں ہم بخشش نہ کروا سکے تو کوئی اور ذریعہ ہے، کوئی اور وسیلہ ہے؟ تو فرمایا یا عمرے پر جاؤ یا حج پر جاؤ، اور جب میدان عرفات میں پہنچو تو وہاں مغفرت کی دعا کرو۔ دوسرا چانس بس وہاں پر رکھا گیا ہے، پہلا چانس یہاں پر رکھا گیا۔ صلوات بھیجا انشاءاللہ یہ مہینہ آ رہا سب سے پہلے اپنے لیے، چونکہ قرآن مجید نے بھی یہی اشارہ دیا ہے کہ انسان اپنے لیے توبہ کرے، اپنے لیے مغفرت چاہے، اپنے لیے رزق جو ہے تلاش کرے، اپنے لیے سب کچھ کرے، لیکن اس کے بعد دوسرا جملہ بھی رکھ دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم۔ سب سے پہلے کہہ دیا قرآن نے کہ اے ایمان لانے والو، سب سے پہلے تم اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو نجات دو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ اس کے بعد فوراً کہہ دیا واہلیکم، اور پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ کس سے بچانا ہے؟
अल्लाह अकबर कह दिया, अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, जहन्नुम की आग से बचाओ। और जहन्नुम की आग के बारे में कह दिया, ऐसा नहीं है कि कोई ये सोच ले कि जो फरिश्ते लगाए गए हैं थोड़ा सा उधर जाएंगे इधर नरमी हो जाएगी और खुदा न खास्ता जो है कुछ न कुछ आराम मिल ही जाएगा। नहीं, कुरान कहता है कि ऐसे फरिश्ते मुअय्यन किए गए हैं जो आग को जलाने वाले हैं, जो आग को संभालने वाले हैं, जो आग को भड़काने वाले हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसे मलाइका हैं, अलैहा मलाइकतुन ग़िलादुन शिदाद, ऐसे मलाइका को मुअय्यन किया गया है जो बड़े मुहकम हैं, बड़े मजबूत हैं, बहुत ही ज़्यादा अल्लाह ताला ने उनको ताकत दिया है। अल्लाह यासूना मा अमरहुम, और अल्लाह ताला जो है जो उनको हुक्म देता बस उतना ही करते हैं। ये नहीं कि तरस खा जाए तो ये जल लाए तो थोड़ा सा लकड़ी बटा दे, नहीं, देखते हैं अल्लाह क्या कह रहा है, उसका रसूल क्या कह रहा है, उसके इमाम का फरमान क्या है। सलवात भेजा लिहाजा ये महीना ऐसा महीना कि इंसान अपने आप में देखे परखे, रोज़ ये सोचे कि परवरदिगार आज कितना करीब हो गए, तेरी मर्ज़ी से कितना करीब हो गए, तेरी जन्नत से कितना ज़्यादा करीब हो गए। और एहतराम के सिलसिले में रिवायतें जो पेश कर रहा हूँ ये दोनों फ़िरक़े में हमारे पास भी है, हमारे बिरादर अहले सुन्नत के बाद ज़्यादातर जो मैं रिवायतें पढ़ रहा हूँ ये ज़्यादा बैहक़ी में है, बुखारी में है, तिरमिज़ी शरीफ में है। उसके अलावा अपने पास तो बिहार वगैरह में माशाल्लाह ऐसी रिवायतें बहुत ज़्यादा है। लिहाजा एक मजूसी के लिए मिलता है कि देखें कितना ज़्यादा। कभी कभी लोग मजाक कर दिया करते हैं, अगर उनसे कहा जाए कि अमाल बजा लाएं तो कभी कहते हैं क्या हमारे अमाल बुरे हैं, क्या बजा लाए, ये कह के टाल देते हैं। कभी कहा जाए कि रोज़ा रखें तो ये जुमला कहा जाता है क्या हमारे पास कोई कमी रह गई, क्या खुदा न खाता कि हम भूखा रहे, ऐसे जो है जुमले आते रहते हैं। लिहाजा ये बद एहतरामी है, मजाक में भी नहीं कहना चाहिए क्या हमारे पास कुछ नहीं है, अल्लाह का दिया बहुत हुआ। नहीं, अल्लाह ताला ने दिया है, 11 महीने तक खूब उसने खिलाया कादिर, लेकिन अब उसने जो है ये कह दिया है कि कुछ घंटे के लिए हमारी शबी बन जाओ। यकीनन अल्लाह की कोई मिसल नहीं हो सकता है, लेकिन मसल हो सकते। कुरान ने कहा है लैसा कमिसली शै, अल्लाह के मिसल ही नहीं हो सकता है, लेकिन मसल उसने बताया है कि थोड़ी शबाहत हो सकती है। तो अल्लाह ताला ने अपनी शबाहत में जो है क्या चाहे सारे मोमिन से, कहा कि अल्लाह की एक बात जो बड़ी ख़ास है ये है कि अल्लाह खाता नहीं है, अल्लाह पीता नहीं है, लेकिन दूसरों को खिलाता है, दूसरों को पिलाता है। तो तुम 11 महीने तक खाते रहे, लेकिन अब 14-15 घंटे तक ऐसे बन जाओ कि जैसे खुदा ने अपनी सिफत रखी है, तुम भी खाना न खाओ लेकिन दूसरों की फिक्र करो, पानी न पियो लेकिन दूसरों की फिक्र। सलवात भेजा कि हमको बहुत एहतराम करा। यहाँ तक कि मैं भी देख रहा था हमारे मसले मसाइल में यहाँ तक समझाया गया है कि पूरे घर वाले रोज़े से हैं तो माह मुबारक रमज़ान का इतना एहतराम है कि घरों में जो खादिमा आती हैं या खादिम आते हैं तो ये न सोचें कि नहीं ये तो अपने मज़हब के नहीं हैं, गैर हैं, लिहाजा उनको चाय पिला दें, पानी। कहा नहीं, शरीयत ने कहा हराम है, क्योंकि रोज़े का मजाक उड़ता है कि घर वाले तो रोज़े से हैं, हम दूसरों के सोचे बेचारा गरीब है। नहीं, गरीब है 11 महीने के लिए है, लेकिन अब एहतराम न करे गुर्बत का। अगर खिलाना है तो मगरिब बाद बुला ले कि हाँ तुम्हारे लिए सब्र रहेगा, उसको दिन में न खिलाएं, न चाय पिलाने के लिए तैयार हो, न पानी पिलाने के लिए। तो जो माह मुबारक रमज़ान का एहतराम ख़ास है कि यहाँ तो हिंदुस्तान है, लिहाजा जो है कोई खुदा न खाता ऐसा कर जाता बच जाता है, लेकिन जो मुसलमान ममालिक हैं वहाँ गिरफ्तार कर लिया जाता है। ईरान वगैरह में तो बाकायदा 1 महीने के लिए अंदर बंद कर दिया जाता है, रोज़ा रखवाया जाता है वहाँ पर, और जब ईद की नमाज का जो है वक्त आता है तब छोड़ दिया जाता है। एक सलवात भेजे तमाम चीज़ों के साथ अल्लाह ताला के इस महीने का एहतराम भी करना है। खुदा न खास्ता अगर बीमारी है और नहीं रख पा रहे हैं तो बहुत छिप करके थोड़ा सा खा लो। उसमें भी हुक्म ऐसा है कि बहुत मुख्तसर, बहुत पेट भर के न खाएं, क्योंकि डॉक्टर ने बताया खुदा न खाता नहीं खाएंगे तो जो है बीपी बढ़ जाएगा, कोई ऐसा हादसा वाक़या हो जाएगा। तो शरीयत ने कहा मुख्तसर था।
پانی بھی پینا ہے تو مختصر سا پانی پی لیں، اور دوسروں کا جو ہے جو بھی گھر میں آئے ان کو جو ہے یہ کہے کہ ٹال دیں نہیں ماہ مبارک رمضان ہے۔ کوئی اگر مہمان خاص ہے جس کے اوپر روزہ ہی ساقط ہے، معلوم ہے کہ باہر سے آیا ہوا ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے، لیکن اس کے لیے بھی احترام ہے کہ کمرے کے اندر اس کو ایسی جگہ کو کھلائیں کہ روزے دار زیادہ تر نہ دیکھنے پائیں۔ تو اتنا زیادہ احترام کے لیے کہا گیا ہے۔ قرآن میں بھی بڑی تشبیہات آئی ہیں، حدیث میں بھی بڑی تشبیہات آئی ہیں، اور یہاں تک یہ بھی روایت باہر سے ہے، یعنی ہمارے برادران اہل سنت نے بیان کیا ہے اور کتابوں میں موجود، لہذا میں پڑھ رہا ہوں کہ ایک مجوسی نے احترام کر لیا تھا، چونکہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور وہ دیکھ رہا تھا کہ کتنا احترام ہے ماہ مبارک رمضان کا، سارے ہوٹل بند کر دیے گئے، کھانا وغیرہ کھاتا ہوا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کا لڑکا 14-15 سال کا تھا، باہر کھڑے ہو کر کے کھانا کھانا چاہ رہا تھا اپنے دروازے پہ، جیسے ہی لقمہ اٹھا کر کے دہن میں ڈالا، حالانکہ اسلام پر نہیں چل رہا ہے مجوسی، اس نے دیکھ لیا اپنے لڑکے کو اطراف میں روزے دار ہیں اور بیچ میں کھڑے ہو کر کے کھانا و پانی استعمال کرنا چاہتا ہے، آ کر کے اس نے ایک تماچا لگا دیا۔ اللہ اکبر، امام کا دور تھا، جیسے ہی تماچا لگایا کسی نے جا کر کے کہا مولا وہ تو مجوسی ہے، اسلام پر نہیں چلتا ہے، لیکن ڈانٹتے ہوئے ایک تماچا لگایا کہ سارے لوگ روزے سے ہیں اور ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے، تجھے خبر نہیں کہ یہ مہینہ احترام کا ہے، کسی کے سامنے کھانے کا حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم اسلام پر نہیں ہیں لیکن ہمیں یہ مسئلہ تو معلوم ہے۔ حالانکہ ایک تماچا مار کر کے وہ خاموش ہو گیا تھا، لیکن جب امام سے بتایا گیا تو امام مسکرائے، کہا کہ یہ ماہ مبارک رمضان کا احترام اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ یہ جنت میں جائے گا۔ لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ یہ جنت میں کیسے جائے گا، یہ تو مجوسی ہے، اسلام کو نہیں مانتا ہے۔ لوگ لگ گئے کہ دیکھیں اس کے آخری ایام تک۔ ایک صاحب نے غور کیا کہ جب آخری وقت آیا تو کہا اب مجھے کلمہ پڑھا دو، میں دنیا سے جانے والا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد۔ امام نے فرمایا تھا کہ ماہ مبارک رمضان کا احترام کیا ہے لہذا جنت واجب ہو گئی۔ صلوات بھیجا۔ ہم احترام بھی بہت زیادہ کریں، خدا نخواستہ کوئی ایسا جملہ ہمارے ذہن میں نہ آنے پائے، ایسی سوچ نہ آنے پائے کہ ہمارے پاس کمی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں بھوکا رکھا ہے۔ نہیں، ہر چیز میں علت ہے، ہر چیز میں سبب ہے، اور انشاءاللہ آئے گا، اخبارات میں بھی آئے گا، حدیث اور روایت کے علاوہ بھی جو روزے کے فوائد ہیں باقاعدہ اردو اخبارات میں اور ایسے اخبارات میں آتے ہیں جو طبیبوں نے فرمایا ہے، حکیموں نے فرمایا ہے، اور باقاعدہ ابھی کچھ زمانے پہلے ایک امریکہ کے ڈاکٹر کو بہت بڑا انعام دیا گیا جس کو نوبل انعام کہا جاتا ہے۔ بہت اس کے جو ہے اخبارات میں تعریف ہوئی، واہ کیا تحقیق کیا اس نے، اور کیا جو ہے آگے بڑھ گئے، اتنا اچھا ڈاکٹر تو نظر نہیں آتا۔ اس سے پوچھا گیا کہ آخر جو ہے تم نے یہ کہاں سے سیکھا ہے، چونکہ اس نے ایک بیان دے دیا تھا، لوگ دکھانے کے لیے اس کے پاس آتے تھے اور بہت زیادہ پریشانی تھی، تو اس نے 29 دن کے لیے کہہ دیا کہ اگر سال بھر میں 29 دن تک کوئی بھوکا رہے اور 15-16 گھنٹے تک اپنے آپ کو کھانے سے بچا لے تو یہ جو پریشانی آ رہی ہے، معدہ خراب ہو جا رہا ہے، اس سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اور اس پر میں نے تحقیق کیا ہے، بعد میں پتہ چلا گیا کہ تحقیق کیا ہے، اس نے قرآن مجید میں دیکھا تھا، اللہ نے پہلے ہی فرما دیا ہے، رسول اللہ نے ہمارے پاس 29 دن کا، کبھی کبھی 30 دن کا، لہذا اگر 29 دن کا بھی مل رہا ہے روزہ اور 30واں نہیں مل رہا تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ باقاعدہ شریعت میں ہے چاہے 29 کو چاند ہو جائے اللہ 30 روزے کا ثواب دیتا ہے۔ تو جب ثواب ہم کو ملا تو اعتراض کیوں کریں کہ فلاں نے چاند دکھلوا دیا اور نہیں ہوا تھا۔ ایک صلوات بھیجا محمد۔ اتنی بڑی یہ ذمہ داری کوئی اپنے سر پر نہیں لے گا، اس کو یاد رکھیں۔ کبھی کبھی ہم اعتراض کر جاتے ہیں، ارے 29 تاریخ ہے اور 30 تاریخ کو ہونا چاہیے تھا اور آج پہلے ہی ہو گیا اور ان لوگوں نے ایسا کر دیا ہوگا۔ نہیں، بہت بڑا معاملہ ہے۔ جب روزہ رکھنے کی اتنی زیادہ تاکید ہے تو ایک روزہ خدا نخواستہ کوئی توڑوائے تو ایک آدمی کا تو ہے نہیں، اس کے کہنے پر کتنے ہزار لوگ جو ہے روزہ توڑ دیں گے، تو کوئی ذمہ داری نہیں لیتا، نہ کوئی مجتہد لے گا نہ کوئی آیت اللہ لے گا۔ البتہ یہ کہا گیا ہے کہ زیادہ تر 29 دن کے روزے ہوتے ہیں، 30ویں دن کا گفٹ اللہ تعالیٰ خود بخود دے دیتا ہے۔ اگر 4 مہینے ہو گیا اور رسول اللہ نے جو اس زمانے میں روزہ آیا ہے، چونکہ 1 سال گزرنے کے بعد روزہ آیا ہے، رسالت مآب جب مدینے پہنچے ہیں 1 سال گزر گیا ہے، اس میں 9 سال کے اندر 7 مرتبہ 29 کا روزہ ہوا ہے، 2 مرتبہ 30 کا روزہ ہوا ہے۔ ایک صلوات بھیجا اس کو حفظ ما تقدم کے تحت پہلے سے عرض کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ چونکہ فوراً مجتہد پہ اعتراض کر جاتے ہیں، یہ سب باتیں مجتہد سے آتی ہیں، آیت اللہ سے آتی ہیں، کوئی خدا نہ خواستہ اپنے سر پر نہیں لیتا ہے۔ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے کہ ایک روزہ پوری دنیا سے توڑوا دے تو مجتہد کو فضیلت مل جائے گی، نہیں، ہمارے پاس مجتہد یا آیت اللہ اتنے محکم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا درجہ دیا، ماشاءاللہ
जो आपके ज़बरदस्त है, और सभी को मालूम है कि हमारे आयतुल्लाहों में एक आयतुल्लाह को अल्लामा कहा जाता है। अब तो बहरहाल ये सनद बढ़ने लगी पाकिस्तान वगैरह में, जो थोड़ा सा अच्छा बोलता है उसको अल्लामा कहा जाता है। आगे एक सलवात भेजे आप। लेकिन हमारे पास मुकम्मल तौर पर जो अल्लामा है, जिसको हर लिहाज से अल्लामा कहा जा सकता है, वो अल्लामा हिल्ली है। अल्लामा मजलिसी को भी अल्लामा कहा जाता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं। इनके लिए उलमा ने कहा कि आधे तौर पर है। यकीनन इल्म अल्लामा के करीब पहुंच गया था, लेकिन आधे तक था, लिहाजा ये सनद इनको दी जा रही। लेकिन मुकम्मल अगर जो अल्लामा कह के छोड़ दिया जाए, नाम न लिया जाए, तो फ़ौरन जहन पहुंचेगा अल्लामा हिल्ली। तो ये अल्लामा सनद किसने दिया? क्योंकि अभी तक आप ये जानते ज़्यादातर जो है अल्लामा की सनद आवाम में से कोई दे देता है, या कोई अच्छी किताब लिखा तो उलमाए किराम दे देते हैं, लेकिन अल्लामा हिल्ली के लिए मिलता है कि ये सनद इनको दिया था इमाम ने। आप कहेंगे कैसे दिया? कितने मुहकम होते हैं अपनी जगह पर, जो पढ़े होते हैं, कुरान से पढ़ा है, हदीस से पढ़ा है, रिवायत से पढ़ा है, बहुत ज़्यादा मुहकम है, लिहाजा किसी के बात में आने वाले नहीं हैं। ये दर्स दे रहे थे अल्लामा हिल्ली। एक मरतबा इन्होंने देखा मस्जिद में जो है जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ छोटा बच्चा आ गया है। छोटा बच्चा यानी ऐसा नादान कि अभी मस्जिद की जो हुर्मत नहीं समझ पा रहा है, खुदा न खास्ता आवाज़ बुलंद कर जाए, या कोई ऐसा जुमला कह जाए, या कोई नजासत ऐसी हो जाए। लिहाजा यहाँ छोटे बच्चे से मुराद एकदम छोटा बच्चा है जो एकदम नासमझ है। अल्लामा ने जैसे ही देखा दर्स को रोक दिया और उसको भगा दिया, ले जाओ यहाँ मस्जिद से निकालो, इसलिए कि मस्जिद को कहीं जो है बेहुरमती न कर जाए। बहरहाल निकाल दिया गया उसको। शागिर्द उठे और बाहर करके दरवाज़ा बंद कर लिया। जैसे ही ये काम किया, अल्लामा साहब ने रात में ख्वाब देखते हैं कि इमाम आए हुए हैं, और इमाम ने कहा कि वो बच्चा हमारा चाहने वाला है, हमारे मुहिब्बीन, तुमने क्यों ऐसा कर दिया, क्यों निकाल दिया उसको? बहरहाल ये ख्वाब देखा, और ये ख्वाब देख करके ये चुप रहे कि यकीनन ख्वाब है, क्योंकि ख्वाब मासूम का सही होता है, इमाम का सही होता है, सारे ख्वाब सही होना ज़रूरी नहीं है। दूसरे दिन जो आप दर्स देने लगे, देखा वही बच्चा फिर आ गया है, और उसको उसी तरह से उन्होंने भगा दिया। ख्वाब की परवाह नहीं किया कि कल हमने ख्वाब में देखा था कि हमारे ज़माने के इमाम आए हुए हैं, और कहा कि तुमने ऐसे क्यों भगा दिया इसको। दूसरे दिन फिर उन्होंने वही काम किया। अब जब दूसरे दिन काम किया तो फिर वही ख्वाब देखा कि इमाम तशरीफ लाए हैं, और कहने कि मेरे जो है दौर का इतना अच्छा बच्चा है, उसको तुमने क्यों भगा दिया। अल्लामा मुस्कुरा रहे हैं लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तीसरे दिन जब ऐसा फिर कर दिया तो जो है रात में ख्वाब देखते हैं कि इमाम तशरीफ लाए, और इमाम के सामने इन्होंने इल्लत बयान किया। कहा कि मौला यकीनन आप ख्वाब दिखला रहे हैं, लेकिन जो मैंने बेदारी में पढ़ा है, रसूल का कौल भी यही है, मौला अली का कौल भी यही है। रसूल ने भी फरमाया है कि छोटे बच्चों को ना आने दो कि बेहुरमती हो जाएगी। मौला अली ने फरमाया है, तो जो आंखों से मैंने दिन में देखा उसको मानूं, या जो आंख बंद करके रात में ख्वाब में देख रहा उसको मानूं। और दूसरी बात यह है कि यकीनन मैं मुज्तहिद हूँ, अगर ऐसे ख्वाब को बयान कर दूँ कि इमाम ने मना किया है, तो आइंदा जितने भी आएंगे अपने ख्वाब को बयान करके शरीयत को जो है इस तरह से जो है कर देंगे कि पता ही नहीं चलेगा कौन सी हकीकत है, कौन सा ख्वाब है। लिहाजा हम जो है इस बात पर भरोसा नहीं कर रहे थे। इमाम मुस्कुराए, कहा यकीनन तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था, हदीस में वही है जो तुम्हारे जहन में है, रिवायत में वही है जो तुम्हारे जहन में है। फिर इमाम ने सलाम करते हुए फरमाया, अंतल अल्लामा, यकीनन तुम अल्लामा हो जिसको अल्लामा। आपके सामने अपनी बात को तो बताया है, आपके जद ने बताया, फिर दरवाज़ा खुल जाएगा, जो आएगा वही कहेगा हमने ख्वाब में देखा है, हमने ख्वाब में देखा है। और मैं बेदारी में जो रिवायतें हमारे जहन में है एकदम याद है, लिहाजा इनके मुकाबिल में कभी कोई नहीं आता था। उसके बाद भी अल्लाह ताला ने बहुत बड़े बड़े दर्जात दिए हैं, जैसे अल्लामा अबुल हसन इस्फहानी बहुत बड़े मुज्तहिद और आयतुल्ला थे, और कोई साहब से पहले पूरी दुनिया में इन्हीं को माना जाता था, इन्हीं को जो है इकरार किया जाता था कि आलम दौरा यही है। लिहाजा उस ज़माने में एक बहुत बड़े आयतुल्ला इंशाल्लाह ज़ियारत करने जाएंगे आप, तो हरम मासूमा में जैसे ज़ियारत करके सिराने जाएंगे, एक बहुत बड़े मुज्तहिद की कब्र है जिनको अब्दुल नबी अराकी कहा जाता है। बहुत ज़बरदस्त इल्म था, अच्छा था, बेहतरीन थे, लेकिन इनके दिमाग में ये आ गया था कि मेरा इल्म अबुल हसन साहब के बराबर हो गया है। सलोहात भेजा मुज्तहिद थे, सब कुछ थे, लेकिन आलम दौरा नहीं था। आलम दौरा यानी आज बहस ये निकल आई है कि हमारे पास कितने मुहकम होते हैं जिनको हम आयतुल्ला मानते हैं, जिनको हम मुज्तहिद मानते हैं, वो कितने ज़्यादा अल्लाह ताला ने उनको पावरफुल बनाया है, कितनी ताकत दे रखी है। लिहाजा शिराज़ी साहब के लिए मिलता है, जब उन्होंने फतवा दिया सामर्रा में, फतवा देने के बाद लोग मुबारकबाद देने पहुँच गए, देखा तो चेहरा उतरा हुआ है, आयतुल्ला हसन शिराज़ी साहब का चेहरा उतरा हुआ है, बड़े अफसोस में बैठे हैं।
चूँकि उन्होंने एक फतवा दे दिया था कि पूरा ईरान में जो ज़माने में तंबाकू का दौर था और सारे मुसलमानों को दबा करके अंग्रेज़ तंबाकू ले जा रहे हैं, जैसे आज कर रहे हैं, पेट्रोल पूरा उनके हाथ में है। उस ज़माने में भी चूँकि शाह के दौर से पहले का वाक़या है, ईरान जो है इनके दबाव में था अंग्रेज़ों के। जब इनको पता चला, हालांकि ईरान में नहीं थे, हसन शिराज़ी सामर्रा में थे उस ज़माने में, वहाँ पर इज्तिहाद करके इनकी आयतुल्लाही के दौर चल रहा था। जैसे ही इनको पता चला, इन्होंने दे दिया एक फतवा कि यहरुमुत्तुतून, आज से तमाम तरह के तंबाकू का इस्तेमाल हराम। जब इस्तेमाल हराम कर देंगे तो कौन खेती करेगा, कौन बोएगा? चूँकि ईरान में इसकी खेती होती थी, लिहाजा जो शाह का आचार था वो शाम में जब खाली हुआ, लोग आके बैठे, देखा हुक्का सामने नहीं आया। जब हुक्का सामने नहीं आया चढ़ा करके, तो एक मरतबा बुला करके पहले ज़ौजा को डांटा, उसके बाद कनीज़ को डांटा। कहा तुम्हें खबर नहीं है दोपहर में आयतुल्ला साहब का फतवा आ गया है? कहा फतवा आ गया तो क्या थे? कहा जिसके फतवे पर मैं तुम्हारे लिए हलाल हुई हूँ उन्होंने तो सेगा बताया है, उसीने फतवा हराम कर दिया है, हम ऐसा करने वाले नहीं। लिहाजा बादशाह भी हिल गया। अल्लाह अकबर, इनका फतवा ऐसा होता है कि घरों के अंदर रसूख कर जाता है, घर के अंदर सब चाहते हैं। बहरहाल बड़ी ज़्यादा मुबारकबाद, चूँकि फ़ौरन टूट गया मसला, अंग्रेज़ वापस चले गए। कहा जब खेती नहीं होगी तो इनसे कौन लेन देन करेगा? ये करके इंग्लिस्तान के लोग पीछे हट गए। इनके पास लोग मुबारकबाद देने पहुंचे, देखा चेहरा उतरा हुआ है। कहा आयतुल्ला साहब आपने इतना बड़ा फतवा दिया है, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कहा कि अफसोस इस बात का है कि अभी तक मुज्तहिद और हमारी शीहों की ताकत कोई जानता नहीं था, आज एक फतवे से अमेरिका पहचान गया है, इसराइल का अब हमको खतरा है आइंदा, अभी तक हमारी ताकत का अंदाजा नहीं था, आज पता चला एक मुज्तहिद कितना मोहकम होता है, कितना भारी भरकम होता है। शलवार माशाल्लाह। हालांकि ये इलाका अल्हम्दुलिल्लाह पाक साफ है हमारा, लेकिन यूट्यूब पर है सब जो है तमाम चीज़ें सुनते रहते, घबराने की ज़रूरत है। हमारे पास आयतुल्ला इतना मुहकम होता है कि उसके सामने ये जो छोटे छोटे मच्छर उड़ रहे हैं और इसराइल पैसा दे करके ऐसा कहलवा रहा है, कोई असर पड़ने वाला नहीं। हमारा मुज्तहिद यकीन नायब इमाम है, अल्लाह ताला ने नायब का दर्जा दिया है, इमाम ने नायब का दर्जा दिया है। लिहाजा कभी भी जो है इंसान ये सोचे अरे अब क्या होगा, अब तो वहाँ से आवाज़ उठने लगी, अब तो यहाँ से आवाज़ उठने लगी। नहीं, अपनी जगह पर इतना बड़ा मंबा है, इतना बड़ा सरचश्मा है, इतने मुहकम होते हैं, इतने मजबूत होते हैं। और इमाम ने साबित किया है, इमाम ने दिखलाया है कि जब इनको पता चला कि यकीनन ये आयतुल्ला साहब हैं और ऐसे ऐसे इनका दौर चल रहा है, तो सोचने लगे कि शायद मैं भी बराबर हूँ। लेकिन इमाम ने फ़ौरन जाहिर कर दिया कि नहीं, तुम बराबर नहीं। किस तरह से जाहिर किया? चूँकि ये बहुत बड़े यकीनन अब्दुल नबी हैं, अल्लाह ताला ने दर्जा दिया था, बहुत बड़े मुज्तहिद थे, दिमाग में आया। लेकिन ये सोचने लगे कि बहुत से लोग इमाम से मिले हुए हैं, हमारी मुलाकात इमाम से नहीं होती, लिहाजा नजफ़ चलना चाहिए। नजफ़ में पता चला एक नौजवान है जो इमाम से बहुत मिलता है, उससे जाकर के पूछा कि बताओ क्या तरीक़ा है जिससे हम इमाम से बच सकें। अभी अर्ज़ किया था मजलिस में, चूँकि तीन मुनासिबात है, इसाले सवाब भी हो जाए, इमाम का भी तज़किरा हो जाए, माह मुबारक रमज़ान की भी इस्तिक़बाल की बातें हो जाए, लिहाजा सिर्फ इशारा करते हुए आगे बढ़ना है। जब वहाँ पहुँचे तो उसने कहा कि 40 जुमेरात का छिल्ला कीजिए और जब मस्जिद सैला जाके बैठिए और ये फरियाद कीजिए जो मैं बता रहा हूँ, या अबा साले अल मेहदी अदरिकनी, अय अबा साले मेरी मदद को पहुँचिए, अय इमाम ज़माना मेरी बात को सुनिए। 40वें दिन यानी 40वें जुमेरात जो आएगी उसमें एकदम मतवज्जे रहिएगा, चूँकि ये अमल ऐसा है कि यकीनन पूरा हुआ है, कई लोगों ने ऐसा किया है। बहरहाल जब 40वां जो है चिल्ले का दौर आया और जुमेरात की रात गुजरने लगी तो इनके एहसास हुआ जैसे कोई चला रहा है, क्योंकि मुसलसल फरियाद कर रहे, तस्बीह पढ़ रहे थे। लेकिन ऐसा वक्त आ जाता है कभी कभी कि इमाम गुजर जाते हैं, पहचानता नहीं आते। लिहाजा करीब आए और आने के बाद सलाम किया, इन्होंने सलाम का जवाब दिया और सलाम का जवाब देने के बाद इन्होंने पूछ लिया कौन है आप? तो इमाम आम तौर पर ऐसे जुमले कहते हैं कि सामने वाला न समझ पाए। कहा मैं सैयद मेहदी हूँ, ये नहीं बताया कि इमाम ज़माना हूँ, तुम्हारे दौर का इमाम हसन हूँ, मैं सैयद मेहदी हूँ। ये ताज्जुब में कहने लगे कि मैं तो जिसको बुला रहा हूँ उसको जो है याद कर रहा हूँ, ये हमारे जो है चिल्ले में खुदा न खासा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, लिहाजा इतना कहना था। कहा अच्छा तुम काम के लिए बुला रहे, कोई काम नहीं, मैं जिससे बुला रहा हूँ उससे काम है। ये कहा तो वो चले गए। जैसे जाने लगे तो एहसास हुआ इनको कि मैं चिल्ले के दरमियान में इतना खोया हुआ था, कहीं वही सैयद मेहदी ना हो, कहीं वही हमारे इमाम ज़माना ना हो। लिहाजा जिस रुख पर गए थे, जिस नौजवान ने बताया था उसके घर की तरफ जा रहे थे, दौड़े। लेकिन ये कह रहे थे कि वो चलने वाला बहुत आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था, जिसको कहा जाए बावकार तरीके से, और मैं दौड़ रहा था, देख रहा था पहुँच नहीं पा रहा। वो आहिस्ता कदम रख रहे हैं तो आगे बढ़ रहे हैं, मैं तेज़ दौड़ रहा हूँ तो करीब नहीं पहुँच पा रहा।
लेकिन जैसे ही दरवाजे के अंदर गए दरवाज़ा बंद हो गया, दफ्फुल बाब किया, वो नौजवान निकला, कहा ऐसे ऐसे अभी जिस इमाम को मैं याद कर रहा था वो आए भी मैं समझ नहीं पाया, तुम्हारे घर में? कहा हाँ हमारे घर में है, लेकिन ऐसे मुलाकात नहीं होगी, पहले हम इजाज़त लेकर के आते। बहरहाल इजाज़त लेने गए थे, इमाम ने इजाज़त दे दिया कि आओ। तो ये सोच के गए थे कि इमाम से कोई और बात नहीं, मैं इतना बड़ा मुस्तैद हो गया हूँ, 14 मसाइल ऐसे हैं कि कुरान और हदीस से समझना है और कुरान और हदीस से निकल नहीं पा रहे थे, इमाम बता देंगे। बहरहाल जैसे ही गए पैर पर गिर गए, हाथ चूम लिया, सब कुछ हुआ, सलाम कलाम हुआ, लेकिन वो 14 मसाइल के बारे में बार इमाम पूछते जा रहे हैं, और कोई हाजत है और कोई बात है, ये जो है सोच रहे हैं कि हाँ कहूँ, लेकिन कह नहीं पा रहे, जबान खुल नहीं रही है, कुछ याद ही नहीं आ रहा है। बहरहाल थोड़ी देर के बाद फिर देखा कि इमाम वहाँ चले गए। जैसे ही ये दरवाजे के बाहर आए, सोचा तो 14 मसले फिर याद आ गए। जब याद आए तो अब अंदर गए तो उस नौजवान ने कहा नहीं, इमाम तो जा चुके हैं, उनके नायब बैठे हुए हैं, अगर उनके नायब से पूछ लो तो यकीनन तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। इमाम तो गए, तशरीफ ले गए यहाँ से। अब जो गए कमरे में क्या देखा, यही अल्लामा अबुल हसन इस्फहानी बैठे हैं। सैयद अबुल हसन इस्फहानी साहब बैठे, नायब दौरा। उस ज़माने में आलम दौरा थे, सबसे आला जो होते जैसे 7 मराजे हमारे हैं, उसमें सिस्तानी साहब हैं और आयतुल्लाह खामनाई साहब हैं। ऐसे ही वो दौर में अकेले थे, लिहाजा जब इनके सामने गए तो इनको सब मसले याद आ गए। बैठे दो दानू हो के बहुत बादब, अब इनके दिमाग में नहीं है कि मैं इनसे ज़्यादा काबिल हूँ या इनके बराबरी से पढ़ लिया हूँ, हमारा इल्म बराबर है। अब सामने बैठे ऐसे जो है मसले को पूछ रहे हैं और वो देख रहे पानी की तरह वो जवाब दे रहे हैं, यानी जैसे इमाम जवाब देते वही उनको जवाब मिलता चला जा रहा है। उसके बाद जब ये बाहर निकले तो शक में पड़ गए कि आया कहीं इमाम ही न रहे हो, कि ऐसा चूँकि इतने मुस्तहिदीन से मैंने पूछा किसी ने जवाब नहीं दिया और ये पानी की तरह बता रहे हैं। हवाला भी कुरान में यहाँ लिखा हुआ है, हदीस में लिखा हुआ है, तुम्हारे घर में जो रखी किताब वहाँ पर जाके देख लो, ये हवाला है वो हवाला है। इनको शक हो गया। जब शक हुआ तो फिर दोबारा गए कि देख लें कि सही में वही इस्फहानी साहब हैं, अबुल हसन इस्फहानी, या इमाम तो नहीं बैठे। देखा ना इमाम है ना इस्फहानी साहब है, दोनों नहीं। नौजवान से पूछा, कहा नहीं वो तो अपने घर हैं, आयतुल्ला साहब नजब में है और तुम देहात में हो, चले जाओ उनके घर। अब इनको शक था, लिहाजा चले गए घर कि नजब में चल करके हम इस्फहानी साहब से ये मसाइल को पूछेंगे। बहरहाल गए तो देखा कि अपनी मसनद को बैठे हुए लोग घेरे हुए हैं, मसले मसाइल जारी हैं, लोग पूछ रहे हैं। लिहाजा दीदानी बहुत अहमियत है, यकीनन ऐसी सी बातें माह मुबारक रमज़ान में सुनेंगे। मैं देख रहा हूँ कि इफ्तार के बाद बड़ी जल्दी से बहुत से लोग भाग जाते हैं, खुदा न खास्ता बहुत बड़ा नुकसान है आपका। ऐसी बातें कुरान और हदीस से पूरे साल भर बयान नहीं की जाती है। इफ्तार के बाद 15 से 20 मिनट उसमें भी खुदा न खास्ता भाग जाना, ये आपका नुकसान है, हमारा नुकसान है। माशाल्लाह इतनी अच्छी मस्जिद सजाई गई है, सब कुछ है, कहाँ जाके खड़े होते ना, जगह का रूल है। इसलिए कोई जाके कहीं अपने घर में बैठता नहीं, बाहर निकला 2 तरफ नाली है, बीच में खड़े हुए हैं, मस्जिद में खड़े रहे, मस्जिद में बैठे, दर्स सुने, कुरान है, हदीस है, आयत है, रिवायत है, फदाइल है, मसाइल है और अखलाकियात है, सारी बातें उसमें आती है और बहुत मुख्तसर तौर पर। और माशाल्लाह हमारे सामने नौशेरे के नौजवान भी हैं, तो हमारे दिल की ख्वाहिश ये है कि ज़्यादातर कोशिश करें कि इफ्तार में भी इंशाल्लाह तशरीफ़ लाएं और मसले मसाइल में बैठे, चाहे कोई कुछ भी कहे। कभी कभी सुनने में आता है, अरे ताना दे देते हैं कि 11 महीने के मुसलमान अब आए हैं और जो है अब जो है नमाज ना, ये सब नहीं। खुदा न खास्ता अपना ताना सुन करके कोई पीछे हट गया तो उसी का नुकसान होगा। हंसी मजाक में लोग कह देते हैं सुनना, और जो है बहुत ज़्यादा एहसास हो तो थोड़ा सा इफ्तार लेकर के आ जाए। जब देखें कि कोई नहीं है तो 2-4 मिल करके ला के सब शरीक हो जाएं कि नहीं हम इफ्तार लाते भी हैं, इफ्तार करते भी हैं। सलवात मोहम्मद। 2 लोग मिल करके लाए तो अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार जो है कोई इतना भारी भरकम वो नहीं है। 2 आदमी मिल गए और माशाल्लाह इफ्तारी करा दिया। चूँकि उसमें लिखा रहता है कि भैया अपना नाम लिखा लो, तो ये एहसास ना होने पाए। कभी कभी हो जाता है, अरे हम तो सिर्फ खा रहे हैं, सिर्फ इफ्तार में चले जा रहे हैं। ये एहसास में नमाज जमात का सवाब चला जाता है, कुरान की जो तिलावत आयात पढ़ी जाती है उसका सवाब चला जाता है, मसले मसाइल का सवाब चला जाता है। और यकीन जानिए आप, इतनी ज़्यादा अहमियत है मसले मसाइल की कि जो है बहुत बड़े एक गुजरे हैं ईरान में, जिनको जो है अबुल हसन बैरूनी कहा जाता है, रेहान बैरूनी, बहुत बुजुर्ग, लेकिन आयतुल्लाह साहब से दोस्ताना था। लिहाजा आयतुल्लाह साहब जब भी आते थे उनके घर के करीब तो मिलने चले आते थे। अबू रेहान बैरूनी से आयतुल्लाह साहब मिलने आए तो देखा जाखनी का आलम है, यानी ऐसे टाइम पर
सूरह यासीन पढ़ना चाहिए। उन्होंने इशारा किया कि थोड़ा सा रुक जाइए, कुछ मसला है, मैं पूछना चाहता हूँ। बहरहाल जैसे ही आयतुल्लाह साहब से उन्होंने मसला पूछा, और मसला पूछने के बाद अभी 2-4 सेकंड बाकी था और इंतकाल करने वाले, तो आयतुल्लाह साहब ने कहा कि बताओ आखिरी वक्त है, तौबा करना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और सूरह यासीन पढ़ना चाहिए। तुमने मसला क्यों पूछा? अभी इंतकाल का वक्त आ गया। तो मुस्कुरा के कहते ये बताओ कि किसी बात से जाहिल मरना बेहतर है या आलिम मरना बेहतर है? ये कहे कि इंतकाल कर। सलवात भेजा और इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आपको भी मौका दिया जाएगा। हम कुरान हदीस रिवायत से फ़ज़ाइल मसाइल पढ़ेंगे, बीच में 5-6 मिनट ये भी रहेगा भैया जो जहन में है अपने, जो भी पूछने जो घरेलू मसाइल होते हैं, कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जो इंसान सोचते ही रह जाता है, नहीं पूछ पाता। ये माह मुबारक रमज़ान में बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत दी गई है, बहुत ज़्यादा नसीहत कुरान ने भी किया है, हदीस ने भी किया है, इमामों ने भी बताया है। माँ देखिए, इसलिए मैंने ये जुमले को पेश किया है कि इसाले सवाब के लिए पूरी मजलिस में यही जुमला काफ़ी है। एक सलवात भेजें आप। इसाले सवाब में अगर जो मजमा आता है, सामने बैठता, मसाइल सुनता, उसमें 2 भी बढ़ गए तो जब तक सुनते रहेंगे कब्र में इसाले सवाब होता है, मरहूम की कब्र में पहुंचता रहेगा। लिहाजा जब इनको शक हुआ कि पता नहीं इमाम से तो मैंने नहीं पूछ लिया, इसलिए कि मेरे जहन में था कि इमाम ही जवाब दे सकते हैं, ये सोच करके पहुँचे नजम। नजम में क्या देखा कि मसनद है, वहाँ पर सारे लोग मसाइल पूछ रहे हैं, आयतुल्लाह साहब भी बैठे हुए हैं। बहरहाल उन्होंने सारे बुलाया, आयतुल्लाह ने लिहाजा अहमियत दिया, बगल में बिठाया और बिठाने के बाद कहा कि वो मसाइल तुम पूछना चाहते हो? कहा कि हाँ आगा 14 मसाइल हमारे ऐसे हैं। कहा कि जैसे जवाब दिया था ऐसे ही जवाब दिया, अलबत्ता आखिर में एक जुमला और इस्तेमाल कर दिया। अब तुम्हें शक तो नहीं है कि इमाम बता रहे हैं? अब तुम्हें शक तो नहीं? एक सलवात भेजा। यकीनन ये लम्हात बहुत अहम है जो आपके सामने आ रहे हैं, और इसमें इंसान सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं करेगा। फलौला अखरतनी इला अजलिन करीब फअसद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। इसलिए कि इंतकाल के वक्त बहुत से लोग ऐसा कहेंगे, परवरदिगार थोड़ा सा मोहलत मिल जाती, थोड़ा सा हमको और मौका दे दिया जाता तो हम जाते दुनिया में और सदका करके आते, खैरात करके आते और नेक लोगों में बैठते, अकुम मिनस सालिहीन, अच्छे लोगों में से मिलते तो जवाब मिलेगा। हालांकि वो जवाब कुरान में नहीं है, लेकिन हदीस ने इशारा किया कि तुमको गोया एक इशारा दिया जाएगा कि तुम पहली दफ़ा ये नहीं कह रहे हो, तुमने अपनी ज़िंदगी में जितने जनाजे उठाए हैं उतनी दफ़ा तुमको मोहलत दी गई है। इसलिए कि जब जो मर के जाता वो चिल्लाता है कि खुदाया मुझे मोहलत दे दे, मुझे मोहलत दे दे, लेकिन रिवायत में जो दफना के आ रहा उसे तो मोहलत मिल रही है। 1 दफ़ा मोहलत दिया, 2 दफ़ा मोहलत दिया, यहाँ तक कि ज़िंदगी में 50 जनाजा दफनाया तो 50 मरतबा कब्रिस्तान से आगे शुक्रिया अदा करना चाहिए कि खुदाया मोहलत ही मोहलत है। तो अल्लाह ताला गोया इशारा कर रहा है कि इंसान आखिरी वक्त में सोचे, नहीं हर बात में गौर करे, फिक्र करे कि जनाजे में जा रहा है तो वहाँ भी गौर करे, तशी कर रहा है वहाँ पर भी गौर करे, इसलिए कि अपने आप को बचाना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा फसदीदो। यकीनन फ़ज़ाइल मसाइल बहुत ज़्यादा है। इमाम के बारे में भी हमारे पास बहुत किताबें, जो हमारे अहले सुन्नत और हमारे पास एक ही फ़र्क है। हमारे बिरादरान अहले सुन्नत ये कहते हैं सयूलत कि अनकरीब विलादत होने वाली है। हमारे पास ये है कि नहीं, विलादत हो चुकी है, ज़ुहूर होने वाला है। हमारे पास सब मौजूद है, उनके उम्र के बारे में है, उनके लक़ब के बारे में है, उनके इस्म के बारे में है, उनके सारे खैरात के बारे में है। तो इतनी फ़र्क है, वरना सब वो भी अक़ीदा रखते हैं। इमाम आएंगे इंशाअल्लाह और वही हमारी इबादत करेंगे, वही हम हमको बचाने वाले हैं। तो यकीन जानिए कि अपने लिए जब भी जो है याद करें कि हमको अपने आप को बचाना है तो इमाम की मोहब्बत के साथ, इमाम की चाहत के साथ, इसलिए कि यकीनन हमारे इमाम ऐसे मासूम हैं कि इनके सामने अगर कोई गुरूर करे तो उसका गुरूर भी सही है। चूँकि एक नौजवान ने गुरूर किया, बस आखिरी बहस में एक नौजवान ने गुरूर किया था, चूँकि जब यहाँ से नादिर शाह दुर्रानी जीत गया हिंदुस्तान को, जीतने के बाद फुर्सत हुई, बैठा हुआ था, उसका एक वज़ीर शिया था, उसने जो है उसका नाम मेहदी था, कहा कि आगा अब तो हो गया है, सारा मामला हल हो गया, अब यहाँ भी आपने फतह याबी कर ली है, अब हमको मौका दीजिए ताकि मैं जाऊँ नजफ़ ज़ियारत करने के लिए, करबला और नजफ़ की ज़ियारत। तो उसने कहा थोड़ा हमें भी बताओ क्या चीज़ होती है ये। तो उसने फजीलत में मौला की ये कह दिया कि ऐसी जगह मैं जा रहा हूँ कि जहाँ कोई नजासत नहीं जा सकती,
वही जाएगा जो तैयब व ताहिर हो। वही उसको लग गई जुमला अजीब, उसने तो है इतने फजाइल से सब छोड़ करके कि मौला के दरबार में जो पाक होगा वही जाएगा, नजासत कोई साथ में नहीं ले जा सकता है, कोई नजीस नहीं जा सकता। कहा नहीं तब तो हम भी चलेंगे और देखेंगे भी। कहा कि कैसे आप आजमाएंगे? कहा कि मैं चल रहा हूँ, एक कुत्ता लेके जाऊँगा और साथ में शराब लेकर के जाऊँगा, और जब अंदर पहुँचूँगा तब तुम्हारी खैरियत लूँगा कि तुमने ही बताया कि हरम के अंदर नजासत नहीं आ सकती, कुत्ता भी नजीस है और शराब भी नजीस है। लिहाजा जब ये ले करके कुत्ता चला है तो कुत्ता साथ में जाता गया, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा आया है उसने सीकड़ी तोड़ा करके ऐसा भागना शुरू किया कि देखा कि ये कहाँ भाग के जा रहा है मालूम भी नहीं हो रहा है। इतनी कुव्वत मिल गई है, अंदर जाने के लिए तैयार नहीं। फिर गिरफ्तार किया, फिर लाए वहाँ से, फिर जो है किसी तरह से जान छोड़ा के कुत्ता भागा। कहा कि हाँ एक आजमाइश तो हो गई, तुमने कहा था नजासत अंदर नहीं जा सकती, कुत्ता नजीस है, लिहाजा ये तो भाग गया। अब शराब जो मैं लेके अंदर आ गया हूँ, उसने जो है वजीर ने कहा ज़रा देखिए तो शराब है क्या चीज़ है। उसने जो ढक्कन खोला, कहा ये तो सिरका हो गया है। कहा ये मौला का दरबार है, नजासत आ ही नहीं सकती है। कुत्ता वहाँ से भाग गया है, शराब सिरका हो गई। एक सलवात भेजा अल्लाह अकबर। लिहाजा वहाँ जब सारे फ़ज़ाइल को सुना, सारी बातें, तो अंदर पहुंचा और अंदर पहुंचने के बाद बहुत तौबा किया, इस्तिग़फ़ार किया, और पहुंचते ही पायती अपने ताज को उतारा। कहा मौला यकीनन ताज आपके लिए है, हम लोगों के लिए ताज नहीं है, यकीनन सारे फ़ज़ाइल आपके लिए हैं। फिर पता चला कि अब्बास अलमदार की दरगाह भी ऐसे ही मोजज़ात दिखलाती है। जा कर के बाहर ठहरा हुआ था, मोजज़े के इंतज़ार में, अभी ज़ियारत नहीं किया था कि यहाँ सुना है रोज़ मोजज़ा होता है। देखा एक नौजवान रोता हुआ चला, बस यकीनन मसाइब के लिए है, नौजवान रोता हुआ चला रहा। चूँकि वहाँ पर करबला के अतराफ देहात में ये तरीका था कि जब भी कोई शादी करता था तो अपने घर नहीं ले जाता था, रुखसती करा के पहले लाता था हरम में। अब्बास अलमदार को सलाम करे, उसकी ज़ौजा खुद सलाम करे, फिर मौला हुसैन को, उसके बाद जाता था। लिहाजा ये नौजवान शादी करके जैसे ही चला, डाकुओं ने इसको लूट लिया और इसकी ज़ौजा को लेकर के चले गए। रात ही के वक्त रोता हुआ आ गया, मौला अभी शादी करके मैं ले आ रहा था, खुदा न खाते ये डाकू हैं, बद किरदार है, क्या होगा? चल करके हम मौला से कहेंगे और यकीनन कोई और नहीं हमारे कहने के लिए। अभी जैसे ही दहलीज पर पहुंचा, देखा नादिर शाह दुर्रानी खड़ा हुआ है और वो जो है मौला मौला पुकारता हुआ जा रहा है। उसने बुलाया, बादशाह ने सोचा जैसे और रियाया है ये भी झुक करके आएगा। उसने इशारा किया तुम क्यों बुला रहे हो, हम मौला के पास आए हुए हैं। तो एक जो है चाहने वाले ने कहा कि बादशाह है और इतनी जगह पर फतह कर, कहा कोई फाते हो, अब्बास अलमदार के सामने किसी की हकीकत नहीं है, मेरा तो मौला अब्बास है। हम तो वहाँ पर अपनी फरियाद को लेकर के सुन लिया। इसने नादिर शाह ने सुना, कहा कि जैसे ही जो है सुनने के बाद वो सोचने लगा कि यकीनन इतना ज़्यादा ईमान है तो हम दखल नहीं देंगे। अलबत्ता उसने ये कहा कि सुबह तक मैं इंतज़ार करूँगा, तुम्हारी ज़ौजा अगर हाजिर नहीं हुई तो मैं अपने पास हाजिर कर लूँगा, इतना ज़्यादा तुम्हारा अकीदा है, ऐसे तुम चाहते हो। उसने जा करके जो गिड़गिड़ाया और रोता हुआ 4 बजे के करीब क्या देखा कि एक तरफ जाली पकड़ के ये रो रहा है, दूसरी तरफ उसकी ज़ौजा गिरिया। दो यकीनन मसाइब के लिए ही काफ़ी है कि उसकी ज़ौजा भी गिरिया कर रही है, अपने शौहर को देखना चाहती। आवाज़ पहचान के करीब चला गया, कहा कैसे हुआ? कहा जिसकी बारगाह में तुम गिड़गिड़ा रहे थे, अरे इसने जाकर के ऐसा हमला किया है। अलबत्ता हमले मैंने देखा कि हाथ नजर नहीं आ रहा है। अरे वहीं पर नादिर साहब बैठ गया कि ऐसे इनके चाहने वाले होते हैं, ऐसों को इन्होंने मोहब्बत में करार दिया है। अरे इस तरह से मोहब्बत तो मैंने नहीं देखी है। हाँ मैं कहूँगा अब्बास अलमदार, अरे आपने इल्तिजा सुन लिया और दूर जाकर के मदद किया। अरे आपकी भतीजी करीब से कहते रही हाय मेरा चचा, हाय मेरा चचा, सारे बच्चे इंतजार करते रहे। हाँ बस अजीज हो, यकीनन जैसे ही करबला का वाकया हुआ, कितने ज़्यादा इनको जो है अल्लाह ताला ने दर्जा दिया है, कितनी मोहब्बत है। एक राहिबा अपना काफिला लेकर के आई और करबला में जैसे ही पहुँचे, नहीं जानती कैसा मैदान है, अलबत्ता इतना उसको एहसास है कि यहाँ पर जंग हुई है, यहाँ पर कोई हादसा हुआ है। उसने कहा कि मेरे जानवरों को छोड़ दिया जाए, पानी वगैरह पी ले, फिर करबला से गुजरेंगे। एक मरतबा आने वाले ने बताया कि ये जानवर जो है जाते हैं किनारे फुरात के, पानी नहीं पीते। कहा पता लगाओ कि कैसा वाकया हुआ, पानी नहीं पीते। अरे जो करीब जाके देखा, एक जनाजा ऐसा है जिस पर हाथ मौजूद नहीं है, वो फरात के किनारे है। कहा और तहकीक करो, इतनी बड़ी जंग हुई है, आखिर ये कैसा हादसा है? अरे बीच मैदान में है, क्या देखा एक लाशा टुकड़े टुकड़े हो गया है, उस पर परिंदों ने साया किया है। एक परिंदा फरात
راحت کے قریب جاتا ہے, اپنے منقار میں پانی لاتا ہے, حسین کی کٹی ہوئی گردن, آئے کتنا ترس ہے. حاضر تو آپ رونے پر آمادہ تھے, جملہ اور میں کہتا ہوں یقیناً ایسی روایت ہے کہ آپ بھی غور کریں گے کہ روایت کب پڑھی جاتی ہے. کتنا بڑا حادثہ ہے, کتنی بڑی مصیبت ہے. ارے بی بی سکینہ کے لیے ملتا ہے کہ جناب سکینہ بھوکی پیاسی ضرور ہے لیکن کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی. راوی کہتا ہے کہ جیسے ہی اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کے قریب گئی, ارے یزید نے چھڑی سے بے حرمتی کی, دندان مبارک پر چھڑی پھیرا. کیا دیکھا کہ جناب سکینہ کو لگ رہا غشی کے عالم میں ہے. دیکھا گیا کہ سکینہ کا جو ہے ہاتھ تھاما گیا, دیکھا کہ بخار آ گیا ہے. ہائے میرا بابا اتنا شان والا, آج چھڑی پھیرائی جا رہی ہے, آج اس طرح سے میرے بابا کو زخمی کیا جائے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.